Assalamu alaikum. I'm Dr. Faryal Razak, and we are very pleased that today we have with us Mohsin Nishad Saab, uh, who's head of compliance, ethics, and compliance at Telenor Pakistan. We are very fortunate to have him here. He is mashallah, a very seasoned professional with over 24 years of experience. He's basically a textile engineer, but switched to HR, did his MBA, and then he has also been a chartered member for Chartered Institute of Personnel and Development UK, which is a very prestigious, institution. And he has been a very seminal coach and a mentor. And before I say something, I would really want to hear what he has done. He has done attended a lot of conferences, and he has so many accolades to share with us. And आज हम इनसे इनकी wisdom पर बात करेंगे for the psychological safety. It is a very important topic in organization and personal context. So welcome to the show, Mohsin Saab. And I would really want कि शुक्रिया आप जी। पहले हमारे viewers को introduce कराएं कि what you have been doing. We need to highlight professionals like you who have accomplished so much, and so people can get inspiration as well. Please आप जरा थोड़ा सा अपना introduction पहले करा दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाल। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर साहब आपको बता चुकी हैं। बेसिकली मैं HR प्रोफेशनल हूँ। ओवरऑल आई हैव 24 years of work experience, out of which 14 is in HR. But then because I was an engineer, I worked in supply chain and some other operations management areas. Thrice in the last 24 years I've switched my career, and that too मैं जो समझता हूँ कि अल्लाह ताला has actually been so kind with me that whenever I ventured into something and put little effort, he magnified it and made me successful. So it's actually because of him, whatever I have achieved in life. So he has been so kind. So as part of my other extracurricular activities, I am representing development of global HR ISO standards in Pakistan, as well Wow. as I am also a member to eligibility screening committee for business schools and do that work with the Higher Education Commission, whose work is to actually accredit business schools of Pakistan as part of my passion to actually bridge the gap between academia and industry, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। और being a person from industry, I feel responsible to help our youth and in talent of Pakistan to be future ready. So वो मेरा एक पैशन है, उसी के लिए मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपना इल्म जितना आगे बांट सकूं, क्योंकि उसी से मुझे लगता है कि मेरा इल्म भी उसी से बढ़ता है. So that's where I'm Amazing. And you to bridge the gap between academia and corporate, it's so essential. और हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा void है ये. And thank you so much for doing that. और ये जो वाकई business schools की accreditation है, सिलेबस की पर भी बात होनी चाहिए कि बहुत आउट ऑफ द डेट चीजें हम पढ़ा रहे हैं. So coming to the topic of the day, Mohsin Saab, it is a very topic that is very closely aligned to what we do, psychological safety, because feel is a framework for emotions, ethics, empowerment, and life skills. So हमने एक थ्योरी ही प्रपोज की हुई है कि आपकी जिंदगी में जो मसले शुरू होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द इमोशनल लैप्सेस, और वही जहां पर इमोशंस की बात आती है वहीं पर एथिकल लैप्सेस शुरू होते हैं. और जब आपके एथिक्स में मसले आते हैं तो फिर ये पावर हंग्री और ये पावर की मिसयूज, एंड देन फिर वो जो आपके लाइफ स्किल्स, जो आपको एसेंशियल लाइफ स्किल्स चाहिए थे टू ग्रो एज अ गुड पर्सन, वो रिलैक करते हैं. तो वी हैव प्रपोज दिस फ्रेमवर्क जिसमें हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज अ बिग पार्ट ऑफ इमोशनल mismanagement, or emotional traumas that are through the environment. तो प्लीज सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती क्या है. जी डॉक्टर साहब, मेरा जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल सेफ्टी का, मैं पहले उसकी एक लाइन आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, और फिर एक मिसाल से ये सही तरीके से हम समझ सकेंगे. साइकोलॉजिकल सेफ्टी बेसिकली इज द प्रेजेंस ऑफ एन एबिलिटी इन अ टीम, ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन where the people who are part of that organization, team or group of people do not hesitate to take risk. They do not shy away of being vulnerable.
if you just keep these two things in mind, which in turn what it entails is that कि अगर वो रिस्क लेने से नहीं घबराते, vulnerability से शर्माते नहीं है, तो वो टीम होती है जिसमें हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है. That's what Definitely. psychological safety is. That's what I feel. Now let me just share with you a very simple example, and imagine a scenario where, and it's a hospital. आजकल हम सब unfortunately एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं, पेंडेमिक है. तो हॉस्पिटल को आप विजुअलाइज करें कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एक मरीज है, बट अल्लाह ताला के फजल करम से और डॉक्टर्स ने जो भी नॉलेज अपना लड़ाया है, उस मरीज के लिए दे आर एबल टू पुल अप अ मेडिसिन, और वो मेडिसिन वगैरह वो कर चुके हैं, उसकी क्वांटिटी अपनी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, और उन्होंने वो जिस तरह सिस्टम होता है वो लिख के दे चुके हुए हैं. अब इट्स मिडल ऑफ द नाइट एंड दैट the doctor is not there, obviously. There is a chief doctor, but the senior doctor treating that person is not there. The paramedical staff is there, and that patient gets some sort of an emergency, and the best course of action then is to give that medicine which was calculated for that person. Definitely. वो जो दोनों लोग हैं वहाँ पे, वो जो उसकी पैरामेडिकल स्टाफ है या जो जूनियर डॉक्टर है, उन्हें पता है कि इसको ये दवा देनी चाहिए. वो दवा निकालते हैं और 2 मिनट के लिए ठहर जाते हैं. उनको एकदम याद आता है कि जब लास्ट टाइम हमने किसी को ये दवा दी थी तो सीनियर डॉक्टर ने कहा था, क्या तुम डॉक्टर हो या मैं हूँ? अपने काम से काम करो, तुम्हारा काम लोगों को दवाइयां देना नहीं है, अपनी औकात में रहा करो. तो वो उस वक्त होते हैं कि क्या सुबह फिर हमें इस तरह की एटीट्यूड से और इससे गुजरना पड़ेगा, और वो उसको दवा नहीं देते. अब आई जस्ट स्टॉप इट हियर. मे बी अगर अल्लाह ताला ने उसकी नफ्स लिखी होगी तो बच जाएगा, लेकिन हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए और फिर आपकी और मेरी सबकी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी कि उसको वक्त पे दवा दे देनी चाहिए थी और ये दोनों कितने बेवकूफ हैं. लेकिन अगर आप इसको कोरिलेट करें बड़े उसमें, तो उनकी नाअहली की वजह से वो शायद नहीं मरा होगा. वो मरा उस एटीट्यूड उस कल्चर की वजह से होगा जिसमें उन दोनों ने उस टॉक्सिसिटी की वजह से जो उस एनवायरनमेंट में था, उस मौके पे रिस्क नहीं लिया. अपनी पूरी सेल्फ को वहां पुट करके उन्होंने सोचा ही नहीं. उन्होंने कहा नहीं यार, बाद में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, यहाँ ऐसा ही होता है, इसलिए अपने काम से काम रखो. तुम डॉक्टर नहीं हो, पैरामेडिकल हो. डॉक्टर का काम है बता के नहीं गया तो नहीं बता के गया. सो दैट्स व्हाट the lack of absolute example of lack of psychological safety in a hospital setup, and you and me we are wise enough to expand it to any type of a setup. यही जहाज हो सकता है. I totally agree, and it actually happened to me when my daughter was 1.5 years old. तो वो उसको बीमार हुई तो उसको डॉक्टर ने एक टीका लिख के दिया, और जब मैं उसको लेके गई MI रूम नर्स से लगवाने के लिए, तो नर्स वाज अ वेरी सीजन्ड वन एंड द डॉक्टर वाज अ वेरी यंग वन. उसने कहा कि ये टीका हम बच्चों को इंट्रावीनस नहीं लगाते, तो इधर तो इन्होंने इंट्रावीनस लिखा है, हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं. आई सेड मुझे क्या पता, आप जाएं और डॉक्टर से पूछें. एंड शी वाज, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा था इंट्रावीनस, और यही साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात हुई. द मोमेंट शी पुट द इंजेक्शन ऑन, मेरी बेटी की आंखें ऊपर चली गई, और अल्लाह ने जिंदगी रखी थी तो और बड़ा केस हुआ, उस पर बड़ा हुआ. एंड द नर्स वाज राइट, मगर वो सिर्फ इस डर से कि डॉक्टर ने लिख के दिया है और मुझे लगाना है. एंड माई डॉटर कुड हैव डाइड इन माई आर्म्स एट दैट डे, क्योंकि उसकी आंखें ऊपर को चल गई थी, उसने शेक करना शुरू कर दिया. एंड जब वो उसको, मैंने कहा शायद बुखार तेज हो रहा है, तो मुझे यही परेशानी हो रही थी कि मैं तो माँ हूं, मैं परेशान हूँ, ये नर्स क्यों घबरा रही है, इसके क्यों हाथ पाँव फूल गए. बिकॉज द नर्स न्यू इट कि डॉक्टर ने गलत लिख के दिया है. एक सिंपल सी बात कि आईवी की जगह इंट्रामस्कुलर लगाना था. सो दीज थिंग्स आई टोटली अंडरस्टैंड. आपने जो मिसाल दी, इट रियली struck chord to me, मुझे दिल को ये लगी जाके बात कि we are playing with the lives. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में हम कितने बड़े भारी नुकसान कर सकते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी की जगह, कितनी अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर सकते हैं. सो इसकी जरूरत पे हम अब साइकोलॉजिकल सेफ्टी के कंपोनेंट्स पे आते हैं. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान हो सकते हैं कि अगर ये हम साइकोलॉजिकल सेफ्टी को नहीं रखेंगे. अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा उससे जो सिर्फ एक स्टेप पीछे लूंगा, उसके कब मैं आपको बताता हूँ नुकसान ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडिविजुअल्स को. लेकिन अगर आप इसको अब उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम अपने सेटअप में समझने के लिए आसान हो जाएगा. तो उसको अगर देखें तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में 4 तरह की चीजें अगर है या नहीं है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी किस लेवल की है. सबसे पहली चीज है स्टेट ऑफ इंक्लूजन, दूसरी है स्टेट ऑफ लर्निंग, तीसरी है आपकी स्टेट ऑफ
डिसीजन मेकिंग या एम्पावरमेंट, और चौथी है आपकी स्टेट ऑफ चैलेंज। अब इनको वेरी सिंपली मैं अगर बता दूं, इंक्लूजन का से मुराद ये है कि छोटा बड़ा, हायर डेजिग्नेशन, सी सूट या फाउंडेशन ग्रुप, काला गोरा, लेबर, general management, yeah, whatever it is. So if for an organization to have psychological safety, all have to be treated, included in each and everything. That's the first key requirement. What is learning? State of learning is that we are all humans. We will make mistakes. So the culture of learning from the mistakes, where आप अपने आप को जजमेंट के मैं जज हो रहा हूँ, मेरा इंप्रेशन मैनेज किस तरह करना है, उसकी बजाय आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन उस कल्चर पे आएगी कि वो बंदा खुल के ट्राई करेगा और इनोवेट करेगा, और उसके बाद अगर फेल होगा, जो कि होगा, इंसान फेल होता है, तो दोबारा से लर्न करेगा। ये सेकंड कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट उसका ये है कि आप वहां पे क्या जिन लोगों को ये डिसीजन इम्पैक्ट करती हैं, जिन्होंने आगे फेस करना है, मैं कस्टमर एक्सपीरियंस की डिसीजन बोर्ड चैम्बर में बैठ के बना रहा हूं तो वो कभी भी नहीं चलेगी। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को इनहैंस करने के लिए मुझे जो कस्टमर के सामने लोग बैठे होते हैं उनको उस तरह के टूल्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। That's the third trait. How much that organization is looking forward to involve all levels of organization. And the fourth and the final one is that what is the state in that organization where people do not feel comfort with status quo. Rather they challenge, they speak up. जब उन्हें लगता है कि नहीं ये नहीं है, तो वहां कल्चर में इतनी इंट्रेंड होती है कि वो झिझकते नहीं है। वो कहते हैं कि जी नहीं, वक्त आ गया है इस पॉलिसी को, टूल को, MIS सिस्टम को, या कभी कभी इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बदलने का, क्योंकि शायद स्किल्स रेलेवेंट नहीं रही, शायद वो कंप्यूटर प्रोग्राम रेलेवेंट नहीं रहा, या शायद बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत बदल गई है। तो ये समझने के साथ ना, अब मैं आपको आगे चलूं तो अब अगर आप इमेजिन करें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझने का तरीका जो मैंने अपने लिए डिफाइन किया है, इस वक्त जिस तरह के दौर से आप हम सब गुजर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस गुजर रही हैं, उसको डिपिक्ट करने का बेस्ट वर्ड इस्तेमाल होता है वूका, विच इज वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगस। जिसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो इस वक्त जिस तरह के चीज का शिकार है वो ये है कि उनको वो बहुत अनसर्टन है, उन्हें नहीं पता कल क्या होने जा रहा है, परसों क्या होने। अब और कोविड के बाद तो ये चीज और एनहांस हो जाएगी। कोविड के बाद तो अब तो इट्स अ न्यू नॉर्म नाउ। अब तो ये ऑब्वियस हो गई है ना। अभी तो पहले हम किताबों में 20-30 साल पहले से पढ़ रहे थे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, भूखा हो जाएगा, आपको नहीं पता एल्गोरिथम और ये सब चीजें, अब वो आपके सामने हो गई हैं। अब आपको नहीं पता कि मेरी कंपनी कल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, मुझे नहीं पता है। जो हम इस तरह के वेबिनार्स कर रहे हैं, आज से 6 महीने पहले तक पाकिस्तान में कहते थे कि नहीं जी, फिजिकल सेटअप के बगैर तो लर्निंग इफेक्टिव होती नहीं है। अब हम फिजिकल नहीं करते, तो अब इसी मुल्क के अंदर डिजिटल 3-4 महीने के अंदर इतना ज्यादा इनग्रेन हुआ है, जिसमें हमारी कंपनीज उसको पता नहीं 6 साल से डेफर कर रही थी कि नहीं लोग रेडी नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, स्किल नहीं है, बिल्डिंग अप फ्रॉम देयर। तो ये अनसर्टेनिटी में जो दूसरी चीज रिक्वायर्ड होती है, अनसर्टेनिटी रियलिटी है, हार्श ट्रूथ है, बट देन व्हाट डज इट डिमांड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नथिंग बट अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। वहां पे वो उनसे डिमांड ये करती है कि वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग उस अनसर्टेनिटी की वजह से घबराएंगे नहीं, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें नहीं बंद करेगा, बल्कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि अब आगे एम्बिगुअस ही होगा, अनसर्टेन ही होगा, बट लेट्स पुल इट टुगेदर without any fear of judgment, without any fear of impression management, without any fear of failure, without any fear of not speaking up at the right moment. So that's the power कि वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, जब वो फायदा ये होगा कि वहां के लोग ये सब बीमारियों से वो भर रहे होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट क्वोशिएंट विल बी वे हाई। वहां पे वो वाली ऑर्गेनाइजेशन उस एम्बिगुअस और अनसर्टेन सिचुएशन को किसी से भी बहुत ज्यादा बेहतर मैनेज कर लेगी। दैट्स द पावर ऑफ हैविंग अ साइकोलॉजिकल सेफ्टी इनसाइड द कंपनी। वेरी वेल सेड। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट की बात की,
क्योंकि एक बहुत बड़ा नासूर है ये इम्प्रेशन मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअली केपेबल लोग होते हैं वो उस चक्कर में पीछे रह जाते हैं, इफ दे आर नॉट वेरी गुड एट बिल्डिंग और रेपो बिल्डिंग या इम्प्रेशन, या जैसे कहते हैं ना कि हु नोज हु वाली एक जो कल्चर है हमारा, कि योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क, एक्चुअली दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड सेइंग इट। बट मेरा खुद बहुत डिसएग्रीमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस की। मैं बात भी करूं अगर, तो मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वहां तक ठीक है जहां तक आप किसी का हक नहीं मान रहे। जहां पर आप बहुत इंटेलिजेंट है और किसी को ओवर पावर करके आप उसकी जगह पे आ रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी गलत है मेरे हिसाब में। तो ये जो आपने इंप्रेशन मैनेजमेंट की बात की, आई वुड लाइक यू टू प्लीज शेड सम लाइट ऑन इट। आप इतने सीजन प्रोफेशनल हैं कि हाउ यू सी कि ये किस तरीके से प्ले कर रही है ये जो ट्रस्ट क्वेश्चन की बात की है आपने इस पर। देखिए जी, इसके दो डायमेंशंस हैं। मैं इसे जिस तरह देखता हूँ या मैं शेयर करना चाहूंगा, देयर आर टू डायमेंशंस टू लुक एट इट, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। जो इंप्रेशन मैनेजमेंट है जनरली वो आपकी इंटरनल सेल्फ से आ रहा होता है। मुझे लगता है ये उन लोगों में ज्यादा बीमारी या प्रॉब्लम होती है जनरली जब अगर इंटरनल इशू है जिनका अपना वाई बहुत क्लियर नहीं होता। मिसाल के तौर पे व्हाट आई मेंट इज दैट इफ आई एम क्लियर दैट व्हाई डू आई वांट टू ब्रिज इंडस्ट्री एकेडमिया गैप, देन आई डू नॉट वरी कि मेरे बाल कैसे हैं, मुझे अंग्रेजी अच्छी आती है कि नहीं। मेरा सारा फोकस होता है उन टूल्स को लर्न करने में, पास ऑन करने में, जो ये गैप को काम करते हैं, बजाय इसके कि नहीं वो डीन क्या सोच रहे होंगे, मिनिस्टर एजुकेशन क्या सोचेगा, हायर एजुकेशन कमीशन क्या सोचेगा। आई एम fearless. The word is fearless. Wow. Then the other external item is that external item is that a lot of time that doesn't happen because there are bosses, there are line managers, there are peers, colleagues who judge me by my ethnicity, who judge me by the color of my face, who judge me by the accent I carry, which is Or meaningless. maybe the brand of dresses you wear, maybe the brand you wear. Or unfortunately, and I had to say that in Pakistani corporate world, not only the brand of the dresses you wear, but the brand of the university you are from. If Oh you're wow. not learners, आपकी बात में तो दम ही नहीं है क्योंकि आप तो सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी के अनफॉर्चुनेटली। तो आपको वो वाली जो चीज है मैं उसमें लगाऊंगी यार, नहीं बॉस या मेरे कोलीग्स तो सब अनफॉर्चुनेटली मैं मेहनत करके बन तो गया हूँ बॉस, लेकिन मेरे जो तीन नीचे काम करते हैं ये या लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से या लम से हैं, तो पता नहीं मैं इन्हें मैनेज कर सकूंगा कि नहीं। तो मैं बजाय काम के अब मेरा सारा दिमाग अपनी उन प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव एनर्जी में लगता रहता है और उस इंप्रेशन को मैनेज करने में लगता रहता है, और रिजल्ट आपके सामने है, जो काम है वो नजर आता है। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कोई सी भी दुनिया की टीम है वो बहुत ज्यादा देर ये सुपरफिशियल आर्टिफिशियल अचीवमेंट्स पे चल नहीं सकती। यू हैव टू डिलीवर एंड दैट गेट्स स्कैन्ड आउट आफ्टर अ व्हाइल। तो वो पता चल जाता है आपका, अगर आपका खुद अगर आप वहां टाइम नहीं लगा रहे, काम पे लगा रहे, तो यू कैन इमेजिन। So I hope I've been able to answer your question. So that's what impression management is. Now coming back to your trust question, ट्रस्ट का बहुत तरीके हैं ना। दिस इज वन फॉर ये वो 4 लेटर्स वाला वर्ड है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में गीगा बाइट्स और कितने भी आप टेरा बाइट्स लिख लें इसको आप शायद समझा नहीं पाएंगे। बट दिस इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स आल्सो। टू मी ट्रस्ट इज समथिंग वेयर अगर मैं इंडिविजुअल और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये वो चीज है जहां पे उस इंडिविजुअल को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर कोई सोच समझ के रिस्क लूंगा और अपने आप को वल्नरेबल करूंगा, तो अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे अगले ही लम्हे किल नहीं कर देगी। अब वो जो फीलिंग है वो अगर उस इंडिविजुअल को ट्रस्ट है और उस ऑर्गेनाइजेशन को ये ट्रस्ट है कि ये इंडिविजुअल हमने इसे बहुत स्किल्स कॉम्पिटेंसी डेवलप किए हैं लेकिन ये एंजल नहीं है, ह्यूमन है, ये उन रिस्क को लेगा और हो सकता है वो रिस्क लेते हुए गलत कर दे, विच इज ओके। Now that's and when at the point where they both of them meet, that organization has an absolute combination of very good trust quotient, and then those organizations are the one who become Google in 21 years, Salesforce.com in almost just 3 decades, in a market which had an example of organizations which became उनके साइज की in 175 years, 195 years, 200 years। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने सिर्फ इन चीजों को
लेवरेज किया है, और उस तरह की एग्जांपल्स को जनरल इलेक्ट्रिक, नेस्लेज एंड कोर्ट्स एंड यूनिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने जो स्टेटस अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट और इन सारे कल्चर के हिसाब से 200 साल में अचीव किया था, 21 साल 30 साल इनमें अचीव करके दिखाया। That's the difference. That's what a psychological safety culture can bring. It can actually enhance the delivery and results, जिसकी वजह से हमने वो कंट्रोल और वो सबका फियर का कल्चर एक्चुअली कंपनी में डाला होता है कि शायद मेरी सेल्स बहुत बढ़ जाएंगी अगर मैं ये नहीं करूंगा, कॉम्पीट नहीं करवाऊंगा इन्हें, या आपस में इनके टारगेट्स में इनको एक दूसरे के पीछे लगा के नहीं रखूंगा, तो मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। वो उन्होंने चीज 100 साल में अचीव की थी, इन्होंने 20 साल में की है उसको निकाल के। सो रिजल्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गूगल, दुनिया का हर तरह का लिटरेचर, हर तरह के स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स आपको बता रहे हैं व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट। वेरी ट्रू। सो बहुत जबरदस्त मुझे ये लगा कि आई थिंक कि इतना कुछ होने के बाद वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी वही वाली बात है ना, एक स्केर्सिटी माइंडसेट के साथ जाती हैं कि इमीडिएट सेल्स, इमीडिएट हर चीज के साथ। और ये चीज मैंने स्टार्टअप्स में देखी है। जब मैं कोच करती हूँ, मेंटोर करती हूँ, मैं अपने स्टार्टअप्स को बताने की कोशिश करती हूँ कि बेटा हर सेल का आप ना सोचो कि हर सेल से एक प्रॉफिट आएगा। कुछ सेल्स आपको सिर्फ आउटरीच के लिए होती हैं। तो ये जैसा कि डिलीवरी के चार्जेस डालना, अगर आपको उस वक्त ये चाहिए कि आप अपने आप को बढ़ाएं, अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, अपने रेपो बिल्ड करें पहले। सो ये जो स्केर्सिटी माइंडसेट है जो अब मुझे आपकी बात से लगा, तो अबंडेंस की तरफ जाना चाहिए कि लुक एट द बिगर पिक्चर, कि आज ये नुकसान हो रहा है आर एंड डी का नुकसान कभी नुकसान नहीं होता, बिकॉज यू आर बिल्डिंग ऑन अ बेटर प्रोटोटाइप। तो ये जो एक कल्चर है, आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो, प्लीज मोहसिन साहब, इट इज सच अ वंडरफुल टॉपिक, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आज, आई रियली गेटिंग अ लॉट ऑफ इंसाइट फ्रॉम योर विजडम। आप ये काइंडली बताइए कि हाउ कैन वी डेवलप दिस साइकोलॉजिकल सेफ्टी, कि इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल से और एक इंडिविजुअल लेवल से, कि आखिर देखें आप भी अगर एक ऐसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल सेफ्टी इनवेरिएबली आपको भी आपके मेंटल ट्रॉमास को भी ट्रिगर करेगी इफ यू आर walking on the eggshells all the time. I बिल्कुल mean, बिल्कुल। it's bound to, pay a toll to your own emotional well-being. तो इस पर भी बात करिए प्लीज। देखिए इसमें इसको भी देखने के इसके दूसरा आपने कहा इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट आई विल गो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स बिकॉज आई पर्सनली फील कि कल्चर मेन इंग्रेडिएंट है जो इसको प्रमोट करेगा या इसको एब्सेंट करवाएगा, और वो जनरली कंपनी की लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। हाँ, मेरी भी एज अ एम्प्लॉय बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, बट पहली जिम्मेदारी कंपनी के लीडरशिप या ऑर्गेनाइजेशनल है। अब उनमें क्या है, जिस तरह मैंने पहले आपको शेयर किया था टुवर्ड्स द स्टार्ट के जी 3-4 एलिमेंट्स हैं इसको देखने के, तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कल्चर के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन टू स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, which is that when you experiment, not all the experiments get successful. ये आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, रेल इंजन पहली दफा वो बानी नहीं थे, Wright brothers were not the first one to get the airplane fly. Thomas Edison was not the first one to get a bulb invented. There were other people who did it for a number of years, failed, and then all these 3-4 people picked up from wherever they left, learned from it and were successful. तो वो वाला कल्चर जो है एक्सपेरिमेंटेशन का, विद अ नोशन दैट ह्यूमंस आर ह्यूमन, दे विल मेक मिस्टेक्स एंड दैट्स ओके अनलेस दे हैव अ माइंडसेट टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। पहली चीज मेरा इंग्रेडिएंट ये है। सेकंड, जिसके लिए आपने जिसको अभी बात की थी, इमोशनल कोशेंट, और आप लोगों के साथ जिस तरह करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा वर्ड मुझे लगता है आजकल, मैंने बहुत रिसेंटली एक लिटरेचर में कहीं पढ़ा था तो मैं उसको अब ज्यादा यूज करता हूँ, अदरवाइज ये वही ओल्ड फिलॉसफी है टीम वर्क या कोलैबोरेशन की, लेकिन उसकी हायर लेवल है जो रिफाइन हुई है पिछले चंद सालों में, जिसको मैं कहूंगा अदरनेस, अ कल्चर ऑफ अदरनेस, व्हिच इज अ कल्चर ऑफ एम्पैथी, where I am not worried about that what will happen to my goal. Rather, I am worried about what will happen to this team goal, then in turn the department goal, and then the organizational goal, and what do I have to contribute towards it. The company brings that कि जी आपका क्या है, वो किस तरह लाती है,
वो हो सकता है वो अपनी कल्चर को इस तरह करेगी कि जिसमें हम इंसेंटिव्स के ऊपर लड़ने की बजाय इन ट्रेड्स को प्रमोट करने के ऊपर opportunities ढूंढ रहे हैं. So that's the second thing an organization can do, which is a culture of otherness. That's what I would say. अपने से पहले दूसरे को रखना और फिर उसी के अराउंड पूरी कल्चर की फाउंडेशन को बिल्ड करना. तीसरा वो है जो मुझे लगता है उसमें वो ये है unlearn and learn, which is continuously challenging what is wrong, what is right, and move on. Continuous improvement पहले कहते थे चीज वही है, लेकिन अब ये है challenging the status quo. क्योंकि आपकी रियलिटीज इस दौर के अंदर बहुत मिलियन ऑफ अ सेकंड में बदल जाती हैं. उसमें इफ यू थिंक कि जी नहीं मैंने तो ये फॉर्मूला 10 दफा ट्राई किया हुआ है और 10 साल से करता जा रहा हूँ और इस कंपनी में तो ऐसा ही होता आया हुआ है, तो वो कंपनी फिर आइंदा होगी नहीं फ्यूचर में. कुछ दिन तो शायद चल जाए लेकिन आइंदा नहीं चलेगी. तो दैट्स द थर्ड ट्रेट अ कंपनी कैन डू. कल्चर ऑफ टेस्टिंग एंड देन रेगुलरली पॉलिशिंग द सिस्टम्स. एंड द फोर्थ वन जो इन सबको ऊपर करेगा, वो जिसको हम सब इन सबको मेरे ख्याल में मैं उसको इस तरह कह रहा हूँ, मे बी लिटरेचर और उसको किसी और तरीके से डिस्क्राइब करें, वो है कल्चर ऑफ स्पीक अप वेयर पीपल आर फियरलेस. बट बिकॉज अदरनेस पहले मैं कह चुका हूं, तो वो फियरलेस है लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है. वो कहेंगे विदाउट रिपरकशंस, दे विल टॉक बट मेंटेनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट, बिकॉज उनकी लड़ाई प्रोसेस से है, पर्सन से नहीं, इंडिविजुअल से नहीं. वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेड. तो ये अगर कल्चर ला सकते हैं तो उस कंपनी का तो ये करने का काम है. अब इंडिविजुअल्स के लेवल पे हम जल्दी से आ जाते हैं कि हमारा टाइम खत्म ना हो जाए. इंडिविजुअल्स के लेवल पे ये है कि सबसे पहला जो मुझे लगता है, हमें सबको जो एक बहुत सिंपल टूल है, हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे हॉट बटन्स क्या हैं, कौन से बटन हैं जो मुझे काम करते हैं, कौन से बटन मुझे टिक ऑफ करते हैं. जब मुझे अपना तजिया होगा तो मैं इस तरह की सिचुएशंस में बहुत कॉन्शियसली कह सकता हूँ कि क्या इस वक्त मैं अपनी जात की वजह से इससे डिफर कर रहा हूँ या वाकई प्रोसेस में हुआ है. वो उसके लिए इंडिविजुअल को सबसे पहले सेल्फ अवेयर उसके, और जिसका जो आपका सब्जेक्ट है इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको होगी तो उसकी इमोशनल रेजिलियंस डेवलप कर सकेगा या कर सकेगी. सेकंड उसका जो एलिमेंट है वो ये है कि उसको भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जी मुझे इस खौफ से बाहर आना है. अगर लोग करते भी हैं जज तो करते रहे, अगर इनका ये मयार है, एटलीस्ट मेरा काम क्या है, वो किसी राइटर की बल्कि एक किताब का भी नाम है इंग्लिश की, so good they can't ignore you. So my work is to put 800% dedicated, committed effort, leave the rest to Allah, and you will see the difference. मुझे ये नहीं सोचना कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे. मुझे मेरा काम फुल तंदही, ईमानदारी, कमिटमेंट के साथ करना है, और उसके लिए फिर मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं एचआर मैनेजर हूँ तो अच्छा एचआर मैनेजर को उस पूरी commitment dedicated होने के लिए what are the competencies and skills needed I need to learn. So I bring them to my workplace, put them into fullest, and then see what is the difference. अगर मैं सब कहता रहूंगा कि जी नहीं ये उनकी कल्चर की वजह से साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिसिंग है, वो ये नहीं करते, तो उस वो का मैं भूल जाता हूँ अक्सर कि वो मैं भी कहीं हूँ, शायद मेरी वजह से ये पूरी की पूरी कल्चर में ये चीजें ठीक नहीं हो पा रही. और चौथी जो चीज इंडिविजुअल की है, जिसको मेरे ख्याल में वो शायद ओवर आर्चिंग है, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, और मैं लास्ट कहना चाहूंगा कि मैं जब इस बारे में अपनी टीम में या कहीं बात करता हूँ तो लोग एक कॉन्सेप्ट को इसके साथ मिक्स करते हैं, विच इज की जी आप तो फिर ये बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, फिर इसका मतलब हम क्या एस्टेब्लिश ही ना करें. तो ये बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की इंडिविजुअल की और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप की. उस अकाउंटेबिलिटी के खतरे की वजह से अगर वो मुझे अकाउंटेबिलिटी ऐसी है और कल्चर में उसकी एग्जांपल ऐसी सेट है कि मैं रिस्क ही नहीं लेता, तो फिर वो कंपनी भूल जाए कि वो कभी गूगल, नेटफ्लिक्स या इवन इस तरह के रिमार्केबल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेगी नहीं कर सकेगी. बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, एंड आई रियली एंजॉयड. तो एट द एंड प्लीज आई वुड लाइक योर लास्ट वर्ड, कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन जो लोग हमारे देखेंगे उनके लिए. द कंपनी, आई होप ये वाला सेशन हम किसी सी सूट के लिए करते हैं, क्योंकि ये जितना मैटर हाई अप का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जो वैल्यूज ट्रिकल डाउन होती हैं,
it is the tone is set at the top actually. तो but the individuals do have their own power. जैसे आपने कहा कि वो अगर locus of control अपना खुद का देखें तो what they can bring to the table, do their best, and then just leave everything to Allah. So please, in the end, आप I would like to have your last word and last recommendations जो आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, please. दो तीन चीजें हैं जो मैं जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह के दौर से, जिस तरह के डिफिकल्ट सिनेरियो से पूरी दुनिया गुजर रही है, हम लोग गुजर रहे हैं, प्रोफेशनल्स गुजर रहे हैं, द टाइम इज not going to improve, it's going to get tougher and tougher. So one thing which is in our control, at least at this level, is to polish your skills, polish your competencies, be more self-aware, and the other thing is be present. Be present at the moment, be aware what is going around, how the world is changing, how the professional demand of professional skills and competencies is changing. एक तो मैं उस पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसके ऊपर अपने 100 को शार्पन करते रहा करें, आप उसको जरूर करें। इन चीजों के बारे में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने भी इसी तरह पढ़ के और अप्लाई करके सीखी है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, अगर हमारे बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स यहाँ पे हैं या जो लोग अपने अर्ली करियर में, कि आप कॉम्पिटेंसीज को रेगुलर पॉलिश करें। दूसरी चीज जो होगी कि आप सब चीजों को छोड़ के जो आपका रोल है वो जरूर प्ले किया करें। एक किसी की मुझे एक कोटेशन बहुत अच्छी लगती है कि आप जब है तो वो कंपनी के प्रॉफिट से रिलेटेड, बट वी कैन कोरिलेट इट टू आई थिंक लॉट ऑफ आवर लाइफ आल्सो। ही वेंट बाय सेइंग इट इज दैट while running an organization or teams and only focusing on profit or goals, it is just like playing tennis while by having your eyes on the ball and not on the game. So that's, please do not get into that trap. These goals and targets, etc., yes, they are there to make you disciplined, but they are not the end. The end is something else. Find out what is the end or what is your calling you want to work on. Work through it. वो गोल्स और केपीआईज नहीं है। जनरली हम इसी के रट में लगे रहते हैं और कई दफा बहुत सारी चीजें अचीव नहीं कर सकते। हालांकि ये दुनिया और बेशक इंशाल्लाह लाइफ हियर आफ्टर भी, वो दैट्स फुल ऑफ immense level of opportunities. It's only we are not able to explore it because we ourselves put ourselves into packets of constraints जो हमें फिर unleash होने नहीं देती। बहुत खूबसूरत बात कि keep the bigger picture in mind, bigger objective, and you are here to play your part in a mosaic of all the things that going around. बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much for giving us so much time and your wisdom, and I had a wonderful time. इंशाल्लाह दोबारा भी आपको हम दावत देते रहेंगे और I thoroughly enjoyed। और आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। And in the end हमेशा हम यही कहते हैं, इन दी एंड हम हमेशा यही कहते हैं कि बी काइंड एंड बी एम्पैथेटिक। और आज मोहसिन साहब की बात के बाद सी द बिगर पिक्चर वेयर यू फॉल इनटू। अपनी जिंदगी में अपना पैशन, अपने आप की प्लेस ढूंढिए और वो प्लेस जो है बिगर गोल के साथ अटैच कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अल्लाह पाक की एवरी वन ऑफ अस सेफ। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया।